Hello, good morning to my dear students, and now we continue about the tense format. In the previous class we learned about the two tenses of the present indefinite and present continuous. Okay, just make a brief introduction about the how to recognize the tense in a proper manner as we had discussed in the earlier class. First, the thumb represent the identity, first finger represent the affirmative, second finger negative, third finger interrogative, and fourth finger the interrogative negative. Okay, now present perfect tense. Whenever you see perfect in any of the sentences, the main rule is that you have to select these portions. If only the perfect, okay, then always there will be the verb third form. टेंसेस के अंदर परफेक्ट का फॉर्मेशन जहां पे भी होता है, अगर इंडिविजुअल परफेक्ट है तो हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. ओके, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर पढ़ा था कि जहां पे भी कंटिन्यूअस फॉर्म नजर आएगी वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पढ़ेंगे. बट इफ इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्ब थर्ड फॉर्म इज एप्लीकेबल. ओके, नाउ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देन verb third form is not applicable. Then according to the continuous tense we use verb first form plus ing. Okay, miss thumb of the rule ये है कि जब भी आपको perfect अकेला नजर आएगा इंडिविजुअल लेवल पे, then we use verb third form. अगर ग्रुप में आ रहा है और ग्रुप में हमेशा ये कंटिन्यूअस के साथ आएगा तो हम कंटिन्यूअस का यूज फॉलो करेंगे. Okay, now what is the identity of this rule? Okay, at the last of the sentence there is चुका, चुकी, चुके हैं. I told you, जैसे वे पिकनिक जा चुके हैं, तो हमें सेंटेंस के लास्ट पोर्शन को चेक करना है कि सर हाउ एंड इन व्हाट मैनर वी रिकॉग्नाइज द टेंसेस. यहां से आपको पता चलेगा सर वे पिकनिक जा तो इनकम्प्लीट है, जैसे आपको पता चुके हैं तो इट रिप्रेजेंट द टाइम टेंस. ओके, then we have to know about the what is singular and plural subject. I told you in the earlier classes singular subject he, she, it, any name, plural I, we, you, they. Okay, then for the affirmative means represent a positive sense in the sentences. Rule is applicable for the singular and plural, but here we use if the verb is singular, if the subject is singular, then we subject plus has. Has is used for the singular subject plus verb third form plus object. If the affirmative sentence is plural form, then subject plus have, verb third form plus object. Now if the sentence is negative form, what we do? Subject, if subject is singular, then subject plus has plus not, verb third form plus object. If the sentence in plural form, then subject have not. Means overall you can see that sir these things are repeated. कि सर ये चीज बार बार रिपीटेड हो रही है. कैसे? लास्ट सेंटेंस के अंदर भी हमने देखा था कि नेगेटिव में तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के पास नॉट आ जाएगा, और ये आपके 12 सेंटेंसेस जो हम यहाँ पे करेंगे टेंस के, उसमें भी बार बार रिपीट होगा. द मेन थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न अबाउट द थिंग्स about this chart is that even we are discussing about the present perfect tense, and these rules are regarding to the present perfect tense. Here the thing is that the helping verb and main verb. हमेशा टेंस के अंदर जो हमें चेंजेस सीखने को मिलते हैं या जो चेंजेस हम करते हैं, वर्ब जो मेन वर्ब होती है हमारी और जो हेल्पिंग वर्ब, उसी के अंदर मोस्टली चेंज आता है. ओके, देन फॉर द इंटरोगेटिव हैज, एज आई टोल्ड यू, इंटरोगेटिव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन. Now for the plural, have plus subject plus verb third form plus object, last interrogative sign. Interrogative plus negative has subject not, verb third form plus object third, and last one is the plural, have subject not, verb third form plus object. Okay, look at this example. वे पिकनिक जा चुके हैं. Okay, firstly we look at the last portion. हमने last portion को check किया. इट क्लियर की सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि लास्ट में चुका है, चुकी, चुके में से एक वर्ड चुके है आ गया. ओके, देन वी सी अबाउट व्हाट इज द सब्जेक्ट. व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज वे का मतलब बहुत सारे, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो रूल इज अकॉर्डिंग टू प्लूरल दिस पोर्शन. ओके, देन सब्जेक्ट दे हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट टू पिकनिक. दे हैव गॉन टू पिकनिक. ओके, व्हेन वी रिपीट इन नेगेटिव सेंस, वे पिकनिक नहीं जा चुके हैं, so then they have not, verb third form. Okay, then if we repeat, क्या वे पिकनिक जा चुके हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन. ओके, तो have they gone to picnic, sign of interrogation. Clear? And now if the sentence is in the form of interrogative plus negative, क्या वे पिकनिक नहीं जा चुके हैं, क्या वे पिकनिक नहीं जा चुके हैं, तो हैव दे नॉट गॉन टू
picnic, and last one is encourage. Okay, now this present perfect tense has been completed. Now we go for the next sheet, and here we learn about. Okay, now in this sheet it indicated about the fourth of the tense of the present tense. Okay, present perfect continuous tense. Or I told you that whenever you see the continuous in any of the tense, just make verb first form plus ing. जब भी आपको किसी भी टेंस के अंदर कंटिन्यूस का फॉर्म नजर आता है तो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज करेंगे आप. ओके, चाहे उसके साथ परफेक्ट दिया हो या विदाउट परफेक्ट हो. आई रिपीट कि जब भी आपको टेंस के फॉर्मेशन के अंदर कंटिन्यूस फॉर्म नजर आएगा तो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज किया जाएगा, वेदर इट इंक्लूड्स विद द परफेक्ट or it may be individual. Okay, now this is most important tense. Okay, why it is important? Because it makes some confusion between the present continuous or present perfect continuous tense. Okay, let me see. Identity at the last of the sentence रहा है, रही है, ये तो आता ही है. इसके साथ हमेशा टाइम मेंशन किया होगा. आपको डिफरेंस यही समझना है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी यही था, रहा है, रही है, मगर वहां पे टाइम मेंशन नहीं था. अब यहाँ पे क्या टाइम भी मेंशन है, रहा है, रही है, और साथ के साथ यहाँ है भी आएगा. ओके, तो यहाँ पे टाइम मेंशन होगा. टाइम मेंशन से सिंस और फॉर का, जो हमेशा आपको एक कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है. ओके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, वही फॉर्मेट रिपीटिंग चलता रहा जैसे अभी तक हमने 3 टेंसेस के अंदर पढ़ा. बट नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन, बिफोर गोइंग फॉर दिस प्रोसीजर विल मेक ए लुक ऑन द टाइम. सिंस और फॉर का बहुत यूज किया जाता है. इट मेक ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स. Okay, now first we clarify the doubt about the since and for, where and how we use since and for. Okay, since in different book it represent a fixed time, certain time and point of time. इसको represent करता है. Okay, हम सिंपली तौर पे कहते हैं कि since का यूज हम ऐसी जगह पे करते हैं जहां पे हमें मालूम होता है कि टाइम फिक्स है. अब आता है हमारा for का. ठीक है, for इज यूज फॉर द अनफिक्स्ड अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ठीक है ना, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि हमें टाइम का पता तो है मगर एग्जैक्ट पता नहीं है. हमें उसकी ड्यूरेशन पता है बट एग्जैक्टली पता नहीं है. अब इसको सिंपल तरीके से करेंगे कैसे? देखो, जब कभी आपको सिंस के बारे में डाउट हो तो हमेशा यू हैव टू लुक एट योर कैलेंडर. आपको अपने कैलेंडर को देखना है. ओके, सबसे इजी ट्रिक है, आपको कैलेंडर को देखना है. कैलेंडर के अंदर जो कुछ भी मेंशन होता है दैट विल कंसीडर एज सिंस. उसका यूज हम सिंस के साथ करते हैं. फॉर एग्जांपल कैलेंडर 2020 या कैलेंडर पे देखिए, कैलेंडर के अंदर कोई ईयर होगा, मेंशन किया गया 2020, दैट वुड वहां पे सिंस यूज होगा. डेट, कोई भी डेट होगी उसमें भी सिंस यूज होगा. कोई डे उसमें भी सिंस यूज होगा. कोई फेस्टिवल उसमें भी डे यूज होगा, सिंस यूज होगा. ओकेजन मीन्स बर्थडे सेलिब्रेशन, डिफरेंट सेलिब्रेशन, स्कूल फेयरवेल, वो भी एक टाइप का ओकेजन हो गया, तो वहां पर सिंस का यूज होगा. सिंस का यूज क्यों होगा? एक्चुअली सिंस और फॉर के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें पता कैसे चलता है कि सिंस रिप्रेजेंट करता है फिक्स सेंस, सर्टेन टाइम पीरियड को. ओके, फॉर एग्जांपल आज हम यहाँ पे हैं तो द डे इज ट्यूसडे. ठीक है, ट्यूसडे को हम यहाँ पे, तो आज एरिया के अंदर दिल्ली के अंदर ट्यूसडे, तो अदर स्टेट्स के अंदर भी ट्यूसडे होगा, फिक्स होगा. ऐसा नहीं कि दिल्ली के अंदर ट्यूसडे तो सम दूसरे स्टेट्स के अंदर वेडनेसडे या मंडे होगा. तो यानी कि वो टाइम पीरियड सबके लिए फिक्स है. इसी तरीके से जब हम ईयर की बात करें, 2020 की बात करते हैं, इवन फॉर द इंडियंस एंड आउट ऑफ द कंट्री ऑफ द पीपल 2020 इज फिक्स, सर्टेन फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. 2020 हर किसी के लिए फिक्स है. तो इसीलिए कैलेंडर के अंदर जो भी चीज वो फिक्स आएगी, ईयर, डे, फेस्टिवल, ओकेजन. इसके अलावा कैलेंडर के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसे हम बोलते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ. हमारी लाइफ के जो स्टेजेस हैं, लाइक चाइल्डहुड, बचपन, यूथहुड, जवानी, ओल्डहुड, बुढ़ापा, ये कुछ ऐसी स्टेजेस जो फिक्स हैं, वो सभी के लिए हैं. ठीक है ना, मीन्स बचपन तो आपका बचपन हमारा बचपन सेम है. बचपन का मतलब कि वो टाइम पीरियड बिटवीन 0 to 7, 9 whatever. ओके, तो मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि सर जब भी हमें सिंस का यूज करना है, जब भी कोई कैलेंडर का टाइम पीरियड, ऑलवेज यूज सिंस. नाउ वी गो फॉर द फोर रिप्रेजेंट करता है अनफिक्स अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को. अनसर्टेन यानी कि जिस टाइम के बारे में हम फिक्स नहीं होते, सर्टेन नहीं होते, निश्चित नहीं होते हैं. जैसे इसकी जो आइडेंटिटी वो कैसे पता कर सकते हैं हम? सिंपली तौर पे जब आपके सामने कोई भी न्यूमेरिकल नंबर दिया हो, 2, 3, 4 व्हाटएवर, ठीक है ना, मैंने भी दिया हो, ठीक है ना, उसके बाद आवर्स, डेज, ईयर या सीजन का यूज किया जाए तब हम फोर का यूज करते हैं. जैसे गाय सुबह से घास चर रही है, जैसे ओनली हिंदी सेंटेंस, गाय सुबह से घास चर रही है, तो यहाँ पे जो टाइम सुबह मेंशन किए गए तो दैट इज फिक्स फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. वो मेरे लिए भी सुबह है और जिस पर्सन से मैं वो बात नरेट कर रहा हूँ उसके लिए भी सुबह है.
मगर जब मैं ये बोलूंगा कि गाय 2 घंटे से घर से इट क्रिएटेड डाउट, ये डाउट क्रिएट करेगा कि अब ये पता करना मुश्किल हो रहा है कि सिर्फ 2 घंटे कब के, मॉर्निंग वाले की बात कर रहे हो, आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट कब की बात कर रहे हो, तो उस केस में हमेशा हम फोर का यूज करते हैं। अगर सिंपली तौर पे हम और भी देखें तो इसको सिंस का मतलब है कि किसी भी इंसिडेंट के आगे कब जैसे आप वर्ड यूज करोगे उसके बाद सीधा आपका आंसर आएगा। कब? 2020, डेट 15 अगस्त, डे ट्यूसडे मंडे, फेस्टिवल दिवाली, ओकेजन स्कूल फेयरवेल, स्टेजेस ऑफ लाइफ, इसके आगे सिंस आएगा। मगर जब हम फोर की बात करेंगे तो फोर हमें फिक्स टाइम को दिखा रहा है कब से, तो कब से 4 2 hours, 4 many hours, days, year, season, whatever. Okay, now we go for the explanation of the present perfect continuous tense. Okay, now we look at the example. रमेश 2005 से दिल्ली में रह रहा है। Okay, firstly identity सर रहा है, नहीं आ रहा है, but अकॉर्डिंग टू दिस इसमें टाइम भी मेंशन होना चाहिए। तो टाइम यहाँ पे 2005 ईयर को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स व्हाई इट कंसीडर्ड एज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि लास्ट में आपको रहा है तो आ रहा है, तो इट मेड ए कंफ्यूजन कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जब हम बात करते हैं तो हमेशा वहां पे टाइम इंडिकेट होगा। यहाँ पे टाइम ईयर 2005 मेंशन किया गया है। तो रमेश 2005 से दिल्ली में रह रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ हाउ वी यूज, firstly there is the subject, then has been. Ramesh has been residing, verb first form plus ing, residing in Delhi since 2005. Since 2005 का मतलब कि वो 2005 से रह रहा है, वो सबके लिए फिक्स है, for me and each and every person। जब 2005 की बात करेंगे तो सबके लिए सर्टेन हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि 2005 की बात चल रही है। मगर इस सेंटेंस को हम यहाँ करें, यहाँ मेंशन करें 10 सालों से, रमेश 10 सालों से दिल्ली में रह रहा है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर 10 साल तो आपने बताया, मगर कब के 10 साल? जस्ट इस टाइम से पहले के 10 साल, आजादी के बाद 10 साल, उससे पहले के 10 साल, व्हाटएवर। तो यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं हो रही है। और सेकेंडली सबसे इजी है कि सर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल नंबर भी दिया गया है। तो जहां पे मैंने आपको लास्ट शीट में भी बताया था कि जहां पे न्यूमेरिकल नंबर मेंशन होता है तो उसके बाद हम मोस्ट ऑफ द टाइम फोर का यूज करते हैं। ओके, रमेश 10 साल से दिल्ली में, रमेश हैज बीन रिसाइडिंग इन दिल्ली फॉर 10 years। ओके, कितना सबको मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो पहले सेंटेंस था रमेश 2005 से दिल्ली में रह रहा है, तो रमेश हैज बीन रिसाइडिंग इन दिल्ली 2005 सिंस 2005 क्योंकि फिक्स टाइम पीरियड था। अब यहाँ पे देखो रमेश 10 सालों से दिल्ली में रह रहा है, तो अब रमेश हैज बीन रिसाइडिंग इन दिल्ली फॉर 10 years। क्लियर है? बट एक कंफ्यूजन को और दूर करना है। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज कर लिया पिछले 10 सालों से। ओके, पिछले 10 सालों से। देखो सेंटेंस का फॉर्मेशन देखो, फर्स्ट में मैंने ईयर मेंशन किया क्लियर कर, सेकंड के अंदर मैंने आपको मेंशन किया 10 सालों में, एंड फाइनली थर्ड के अंदर मैं मेंशन कर रहा हूं आपको पिछले 10 सालों में। अब आपको ये सोचना है सर, देखो 10 साल तो सर कब के 10 साल में, मतलब जब मैंने कहा पिछले, तो ये सर्टेन है ना सर। पिछले का मतलब है जो करंट टाइम पीरियड अभी आप उससे पहले की बात कर रहे हैं, जिससे हम बोलते हैं लास्ट संडे, ठीक है, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, ठीक है ना, लास्ट दिवाली। तो जब हम लास्ट वर्ड यूज करते हैं, लास्ट ऑलरेडी इंडिकेट करता है फिक्स सेंस, क्योंकि सिर्फ पिछला का मतलब है मैं आज करंट पोजीशन से पहले की जो बात करूंगा ना। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना आपने कि रमेश पिछले 10 सालों से दिल्ली में, तो यहाँ पे रमेश हैज बीन स्टार्टिंग इन दिल्ली, फोर नहीं आएगा, सिंस आएगा। सिंस तो आप यूज करोगे और उसके बाद आप क्या यूज करोगे, लास्ट। सिंस लास्ट 10 ईयर, आपका सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट है 100%। मगर आपने अगर लास्ट वर्ड यूज नहीं किया तो दैट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एक्यूरेट, इसको एक्यूरेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है? ओके, नाउ हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं। इस टॉपिक के अंदर मेनली यू हैव टू नो अबाउट द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। नाउ अबाउट पिछले 10 सालों से, हम यहाँ करते हैं 10 सालों से। ओके, सेंटेंस का फॉर्मेशन एज यूजुअल चलता है अफर्मेटिव में। अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे रमेश 10 सालों से दिल्ली में नहीं रह रहा है, देन यूज Ramesh has not been residing in Delhi for 10 years. Okay? Means Ramesh has not been residing in Delhi for 10 years.
ओके, सेंटेंस का फॉर्मेशन हम चेंज करते हैं यहाँ पे, इसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में लेके आते हैं। क्या रमेश 10 सालों से दिल्ली में रह रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, हैज। सेम चीज रिपीट है, बार बार देखो था, हैज सब्जेक्ट रमेश बीइंग रिसाइडिंग इन दिल्ली फॉर 10 years। अब लास्ट फॉर्मेशन आपका आता है, क्या रमेश 10 सालों से दिल्ली में नहीं रह रहा है। इट इंक्लूड बोथ सेंस, इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव सेंस को यूज करता है। हैज रमेश not being residing in Delhi for 10 years. Clear? So overall we can say that we have completed the 4 tenses of the present tense, and how it is important. I told you that the tense formation, the tense topic is not does not come in your exam directly. आपके एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आता है, इनडायरेक्टली आता है। इनडायरेक्टली मीन्स एक्टिव पैसिव नरेशंस लिटरेचर फॉर्म में आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग के पार्ट के अंदर भी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, ग्रामेटिकली एरर, तो वो यहां से हमें क्लियर पता कि वेदर यू हैव टू यूज सेंस ऑफ वर्ब। ओके, नाउ दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, रिवाइज द टॉपिक वेरी वेल। Goodbye, be safe and be healthy.